Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala Model Question Paper Standard 10 Science Sample Paper 3. जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम मई 2021 में है और अभी लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। यदि अभी से आप सैंपल पेपर के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो निश्चित ही आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी स्टूडेंट सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। पैरेलली मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। इसलिए यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे देख पाए। तो चलिए अभी हम लोग सैंपल पेपर 3 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा 3 आवर्स और टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नाउ इंस्ट्रक्शंस मैं पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे स्किप करती हूँ। हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। सेक्शन ए में टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नाउ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट मींस पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे। Now question number 1. Which reaction is the reaction on heating calcium carbonate? First option combination reaction, second option displacement reaction, third option decomposition reaction, fourth option double displacement reaction. Answer will be option C, decomposition reaction. Next question, which functional group is attached with hydrocarbon in the soap? First option SO3Na, second option COONA, third option CH3COONA, fourth option CHONA. Answer will be option B, COONA. Next question, in which part of the kidney is blood filtered? First option urinary bladder, second option urinary tract, third option Bowman's capsule, fourth option collecting duct. Answer will be option C, Bowman's capsule. Next question, in which of the following is solar energy converted into electrical energy? First option solar cooker, second option solar cell, third option solar furnace, fourth option LED. Answer will be option B, solar cell. Next question, which of the following substances has the highest optical density? First option glass, second option water, third option carbon disulfide, fourth option diamond. Answer will be option D, diamond. Next question, the light of which color has the least velocity in the glass prism? First option red, second option blue, third option violet, fourth option green. Answer will be option C, violet. Now next type of question, fill in the blanks so as to make each of the following statement true. अब fill in the blanks के क्वेश्चन है, लेकिन fill in the blanks के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इथिलीन इज एन डैश टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड ऑप्शंस आर एल्कीन और एल्काइन। आंसर विल बी अल्काइन। Next fill in the blank. The elements of group dash of the modern periodic table are called inert gas. Options are 8 or 10th or 18. Answer will be 18. Now next fill in the blank. There is an enzyme dash in pancreas for digestion of fat and options are pepsin or trypsin or lipase. Answer will be trypsin. Next fill in the blank. Stigma is a part of dash. Options are stamen or pistil. Answer will be pistil. Next fill in the blank. The absolute refractive index of glass is dash. Options are 1.33 or 1.5. Answer will be 1.5. Next fill in the blank. The approximate age of the sun is dash years. Options are 5 crore or 5 billion. Answer will be 5 billion. Now next type of question. State whether the following statements are true or false. True false के questions होंगे अब. So first statement is Mendeleev's periodic law was based on atomic number. This statement is false. Next statement, the sex determination in human beings occur right at the time when the fertilization occur therein. This statement is true.
Next statement, by a convex lens, only real image of an object is obtained. This statement is true. But when object is placed between f1 and optical center O, the nature of the image will be virtual and erect. Now next statement, the level of water in the sea rises and falls due to the gravitational pull of moon on the spinning earth. This statement is true. Now next type of question, answer the following questions as directed. So first question, write name of two systems of control and coordination in higher animals. Answer, the two systems of control and coordination in higher animals are the nervous system and the endocrine system. Now next question, what are dominant and recessive variants about the earlobe? Answer, a single gene for which free earlobes is due to presence of dominant allele and attached earlobes is due to absence of dominant allele, in which case the recessive traits is expressed. यदि यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो इस एक्सटेंडेड पार्ट को भी आप लिख देंगे, जो है इफ ईयर लोब्स हैंग फ्री दे आर डिटैच्ड, इफ दे अटैच डायरेक्टली टू द साइड ऑफ द हेड दे आर अटैच्ड ईयर लोब्स. Now next question, generally there are two copies of a set of genes in body cell. Then how do germ cells make a single set of genes? Answer, there are 22 chromosomes pairs, those are called autosomes, and a pair of sex chromosomes. Germ cells make a single set of genes from normal two copies by the process of meiosis, which is also known as reductional division. और यही क्वेश्चन यदि 3 मार्क्स में आता है तो आप ये येलो कलर का जो हाईलाइट है इसे डिटैच कर देंगे और इसके बाद आप लिख देंगे meiosis therefore helps the germ cells make a single set of genes that is called haploid from the normal two copies that is called diploid. Now next question, what is variable resistance? Answer, the component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source is known as variable resistance. Variable resistors are often called potentiometers. Now next question, which fuel is considered as a clean fuel for vehicles? Answer, clean fuels are fuels that are treated with ethanol to produce fewer greenhouse emissions. There are numerous types of clean fuels based on the percentage of the ethanol or biodiesel mixed with conventional fuel. Now next question, state the molecular formula of ozone. Answer, ozone or trioxygen is triatomic inorganic molecule with the chemical formula O3. Now next question, which waste materials can be recycled? Answer, paper including newspapers, magazines and a mixed paper, cardboard etc. are the materials can be recycled. Now next question, match the given pair properly. In group A, there are endocrine glands and in group B, there are hormones. So in group A, first endocrine gland, pancreas and second ovary. And in group B, first hormones, testosterone, second hormone, insulin, third hormone, estrogen. Now answer, for pancreas, hormone is insulin. For ovary, hormone is estrogen. Now section B. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 से 36 तक के क्वेश्चन होंगे. टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन के आंसर का लिमिट 40 वर्ड से लेकर के 50 वर्ड्स तक का है और सेक्शन बी के लिए टोटल 18 मार्क्स है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, हाउ विल यू टेस्ट एसिड एंड बेस यूजिंग olfactory indicator? Explain it with an example. So answer is this. Olfactory indicators are used to identify whether substance is base or acid. Example, onion. When onion paste is introduced to alkaline medium or substance, it loses its smell. But when onion paste is introduced to acidic medium, it retains its smell. Now next question, state 2 remedies to prevent the corrosion of iron. Answer, first, galvanization. Galvanization is the process of applying a protective gene coating to iron or steel to prevent rusting. Now second point,
putting oil or grease over the surface of iron objects. Now next question. Did Dovenier threads also exist in the column of Newland octaves? Compare and find out. And answer is this. Yes, Dovenier thread also exists in the column of Newland octaves. Example, the second column of Newland classification has the elements lithium, sodium, and potassium, which constitute a Dovenier thread having similar chemical properties. Now next question, how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendel's periodic table? Any two anomalies? And answer is this. Note down the answer. Now next question, how is the number of chromosomes and the DNA content maintained constant generation after generation is sexually reproducing organisms? And answer is this. Okay. Now next question, how do Mendel's experiments show the trait may be dominant or recessive? And answer is this. साइंस के आंसर्स में पर्टिकुलर वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है या फिर अंडरलाइन किया जाता है जिससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं. ओके. और इस क्वेश्चन के लिए आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि इतने ब्रांचेज आप बनाओ, लेकिन आप ट्रीज को शो कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप एन एलॉय नाइक्रोम रेदर देन अ प्योर मेटल? एंड आंसर इज दिस. इस क्वेश्चन के लिए यहाँ 2 रीजंस दिए हुए हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट. एंड आंसर इज दिस. पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस को इस तरह से कॉलम में लिख देंगे. फर्स्ट कॉलम में इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे और दूसरे कॉलम में कन्वेंशनल करंट लिख देंगे. ओके. इस तरह से कॉलम में लिखने पर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से कर लीजिएगा. एंड आंसर इज दिस. ओके. इसी तरह से हाईलाइट करना है आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. एंड आंसर इज दिस. Now next question, why is sustainable natural resources management needed? And answer is this. यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहां से यहां तक लिखेंगे और यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे. ओके. देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए. Now next question, what is biodiversity? What is the main aim of conservation of biodiversity? तो पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के आंसर्स को लिखेंगे. तो नोट कर लीजिए. ओके. नाउ सेक्शन सी. सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन है. टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी के लिए टोटल 18 मार्क्स है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर उसके एग्जांपल को लिखेंगे. ओके. तो यहाँ डिफाइन किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. नोट कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज. इस क्वेश्चन के बारे में मैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ आंसर इज दिस.
ओके। और इसके रिएक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, रिएक्शंस भी आपको लिखने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 जो लिखा जाता है वो ऑक्सीजन के लेग के पास लिखा जाता है। ओके। और साथ में आपको स्टेट्स भी लिखने हैं। Now next question, write the difference between metals and non-metals on the basis of physical properties. तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस तरह से 3 कॉलम बना लेंगे और 3 कॉलम बनाने के बाद फर्स्ट कॉलम में प्रॉपर्टी लिख देंगे, सेकंड कॉलम में मेटल्स लिख देंगे एंड थर्ड कॉलम में नॉन मेटल्स लिख देंगे। फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेटल्स के लिए भी लिखेंगे और नॉन मेटल्स के लिए भी लिखेंगे। ओके। यहाँ मैं 5 प्रॉपर्टीज दे चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टीज को लिख दीजिएगा। ओके। Now next question, which hormones is secreted under the fight and flight situation? State its effect. And answer is this. पहले हम लोग हार्मोन के नाम को लिखेंगे और फिर इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन क्या है वो भी लिखेंगे। नोट कर लीजिए। Now next question, describe the methods for population control. And answer is this. ये क्वेश्चन कम मार्क्स में भी आ सकता है और ज्यादा मार्क्स में भी आ सकता है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप मेथड को लिखिएगा। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मेथड्स लिखिएगा, यदि 3 मार्क्स का है तो 3 मेथड्स को लिखिएगा। ओके। और किसी भी एक मेथड को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो नोट डाउन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंसुरेशन। इस टॉपिक का मैं अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो वहां से उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस। ओके। Now next question, explain the phenomenon of refraction by rectangular glass slab. And answer is this. इस क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो चाहे तो आप पहले डायग्राम बना दीजिए फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, या फिर पहले डिस्क्रिप्शन दे दीजिए उसके बाद फिर डायग्राम बना लीजिए। ओके। तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बुक में ज्यादा डिटेल से दिया हुआ है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, तो आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा दिया हुआ है। ओके। और इस तरह के डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। इस डायग्राम में आपको ध्यान देना होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये रे बेंड हो रहा है और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी रे बेंड हो रहा है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द नीट एंड लेवल रे डायग्राम डिस्क्राइब द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 डायग्राम दी हूँ, एक डायग्राम आपको समझने के लिए दी हूँ और दूसरा डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए दी हूँ। ओके। इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बन रहा है। ओके। देख लीजिए यहाँ एक कैंडल है और इसका इमेज इस तरह से बन रहा है, इन्वर्टेड। लेकिन आपको एग्जाम में ड्रॉ ये करना है। ओके। ड्रॉ यहाँ से कर दीजिएगा और ये पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा। ओके। Now next question, derive the formula of equivalent resistance for series combination of resistors. So derivation is this. यहाँ मैं पर्टिकुलर लेटर को येलो से हाईलाइट कर दूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। ओके। और इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही सिंपल वे में लिखी हूं, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में ये बहुत ज्यादा में लिखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में लिखी हूं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होकर के 53 तक जाता है। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन के आंसर का लिमिट 90 वर्ड से लेकर के 120 वर्ड्स तक है और इस सेक्शन के लिए टोटल 20 मार्क्स है।
और इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिटरमाइंड एंड आंसर इज दिस। और इस क्वेश्चन के आंसर को भी मैं बहुत इजी वे में लिखी हूं, तो आप इसे यहां से आसानी से याद कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। ये रेड से मैंने लिखा है, लेकिन आपको रेड से नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए मैं कुछ पोर्शंस को रेड करती हूँ। साथ में कंक्लूजन भी मैंने लिखा है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ HCl gas with diagram. Dry HCl gas is not acidic, but aqueous solution of HCl is acidic. Explain. ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है और ये एक्टिविटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम ये होगा, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, इसी तरह से हाईलाइट कर दीजिएगा कुछ कुछ वर्ड्स को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the classification of hydrocarbon compounds based on their structures and answer is this. इस आंसर में यहां पर आप पॉइंट दे सकते हैं 1, 2 and 3. Okay, now next question, explain the breakdown of glucose by various pathways and answer is this. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, यहां पॉइंट्स में ही लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a neat level diagram of human digestive system and give explanation digestive organs in brief. डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाई हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से करेंगे, यहाँ डायग्राम पहले बना दीजिएगा और साइड में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। ओके, या फिर पहले डायग्राम बना दीजिएगा और फिर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? State the phenomenon based on atmospheric refractions and answer is this. पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट के आंसर को लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटल एप्लायंसेस एंड आंसर इज दिस। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट के आंसर को लिख देंगे और फिर सेकंड पार्ट के आंसर को लिख देंगे। जब भी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग ए स्मॉल एल्युमिनियम रॉड केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग स्टेप्स में लिख सकते हैं और इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, तो स्टेप वाइज आप इसे नोट कर लीजिए और साथ में इस डायग्राम को बना दीजिएगा। ओके, स्टेप जब खत्म हो जाए तो फिर ऑब्जर्वेशंस लिख दीजिएगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिए कंक्लूजन भी। इस डायग्राम में यहाँ कलर किया हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसे आप कलर करो। ओके, नाउ ऑल क्वेश्चंस आर ओवर। नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर 4 का सॉल्यूशन अपलोड करूंगी, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।